Hey friends, welcome again. Today we will discuss about electric potential due to a dipole at an equatorial point at any axial point and about equipotential surfaces and their properties. So guys, let's get started. First we derive electric potential due to a dipole at an equatorial point. देखिए सपोज कीजिए ये मेरे पास एक डाइपोल है, इसका सेंटर है O और यहाँ पे एक पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पूरे डाइपोल की वजह से, इस P पॉइंट पे। एज यूजुअल ये कितनी डिस्टेंस थी 2a पूरी की पूरी, तो ये क्या है a एंड देन दिस वन इज ऑल्सो a एंड दिस वन इज r and this one r square plus a square in under root. Understand? So first we have to find electric potential at this point due to minus q charge and then due to plus q charge, and then we will add these two quantities simply because इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ईजिली प्लस कर देंगे। तो सपोज कीजिए जो V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसकी वजह से है, वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। देन V1 विल बी के क्यू अपॉन प्लस क्यू की वजह से के क्यू अपॉन और इसके बीच की डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। And V2 is due to minus q charge which is equals to minus kq upon under root r square plus a square, equation number second. And then to find total electric potential at point P we have to add these two quantities. Then V total V is equals to क्या हो जाएगा V1 plus V2 which is equals to kq upon under root from equation first and second, kq upon under root r square plus a square minus kq upon under root r square plus a square. Then these will cut themselves and then electric potential at an equatorial point due to a dipole will be 0. This is the final expression for this. Understand? Hence we can say that the electric potential at any point an equatorial line of electric dipole is 0 for all the points. Hence the amount of work done in moving any charge between two points equatorial line is always 0. Understand? Now we have to find electric potential due to a dipole at any axial point. So सबसे पहले इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। पिछली बार की तरह है बिल्कुल सेम। ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये इसका मिडिल पॉइंट है O। अगर ये पूरा का पूरा 2a है तो ये क्या है a एंड दिस इज ऑल्सो a। यहाँ से इसके मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, इसके अक्षल पॉइंट है एक P जिसपे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो यहाँ से प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर पॉइंट की, r माइनस a एंड माइनस क्यू से r प्लस a। अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, एंड देन वी विल ऐड दीज टू क्वांटिटीज टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो गाइज एज वी यूज इन प्रीवियस V1 electric potential is due to plus q charge, then V1 is equals to kq upon r minus a, equation number first, and V2 is equals to due to minus q charge which is equals to minus kq upon r plus a, equation number second. Then total electric potential at point P will be V is equals to V1 plus V2 which is equals to kq upon r minus a minus kq upon r plus a. So kq कॉमन आ गया, देन एलसीएम क्या आ गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब क्या बचा r प्लस a माइनस r माइनस a।
जब मैं ये माइनस ब्रैकेट हटाऊंगी तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स आर से आर कट, क्या बचा 2a, तो के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a इंटू क्यू क्या हो गया p, देन v इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें अगर मैं वही वाला रूल लगाऊँ कि अगर जो a डिस्टेंस है, इफ़ a इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन r, देन v इज इक्वल्स टू हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी axial point due to a dipole, which is v is equals to kp upon r square, where k is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and p electric dipole moment, which is equals to q into distance between these two charges, that means q into 2a and upon r square. So guys, our next topic is relation between electric field intensity and electric potential. This is very important relation and we have to use in next numericals. So please concentrate here and let's start. Suppose कीजिए मेरे पास ये एक Q चार्ज है, वही डेफिनेशन पे चलिए जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में समझाया था। ये पॉइंट चार्ज है, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर को, क्योंकि ये प्लस है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कीजिए पॉइंट ए है एंड एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट पे मुझे एक चार्ज है क्यू नोट, उसको मुझे ट्रैवल कराना है इधर से इधर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट में अगर ट्रैवल कराते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो वहाँ पे जो जनरेट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। समझ गए आप लोग? सपोज कीजिए इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा वी एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी आर। समझे? तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस क्यू नोट चार्ज पे, वो किधर को लगेगा? आउटवर्ड। तो फोर्स किधर को लगेगा? आउटवर्ड। और डिस्टेंस, क्योंकि चलाम इधर को रही है तो डिस्टेंस डी आर की डायरेक्शन किधर को है? इधर को। तो फोर्स के और डी आर के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझे आप लोग? देन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट बी टू पॉइंट ए विल बी dw इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझे आप लोग? f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अमाउंट ऑफ वर्क है ये फ्रॉम मूविंग ए क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। तो dw इज इक्वल्स टू f वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? f डी आर कॉस थीटा, क्योंकि थीटा क्या है मेरा? 180 एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या? cos 180 इज इक्वल्स टू क्या होता है? -1 एंड dw इज इक्वल्स टू क्या आ गया? -f डी आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे वर्क निकालना पड़ेगा और दोनों को फिर कंपेयर कर दूंगी। करूँ मैं? मेरे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं वहां से ले लेती हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? w dw अपॉन क्यू नॉट, देन यहाँ से जो वो आ जाएगा dv, क्योंकि dw ले रही हूँ ना मैं, तो इधर भी dv लेना पड़ेगा। देन dw इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? क्यू नॉट dv, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से क्या करूँ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड करूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयरिंग वैल्यूज ऑफ dw, क्या हो जाएगा? क्यू नॉट dv इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी आर। एफ क्या है? क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई क्यू नॉट ई, क्योंकि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रख देती हूँ मैं इसमें, क्यू नॉट ई डी आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू क्या आया? माइनस डी वी अपॉन डी आर। अंडरस्टैंड? क्या आया? माइनस डी वी अपॉन डी आर। That means the quantity dV upon dr is the rate of change of potential difference with distance r is called potential
ग्रेडियंट, ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। अंडरस्टैंड? In this expression, negative sign shows that the direction of electric field is in direction of decreasing potential. Understand? And its SI unit is volt per meter. यहाँ से क्या पता चला? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट क्या हो गई? वोल्ट पर मीटर। समझे आप लोग? So friends, our next topic is equipotential surface. देखिए कुछ इसका मीनिंग और डेफिनेशन आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा। दैट मीन्स वो सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। सपोज कीजिए ये मेरे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू सेम होगी, तभी ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाई। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसकी सबसे अच्छी और सबसे पहली जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो है वर्क डन जीरो होता है, मतलब WAB = 0 होता है। क्योंकि सपोज कीजिए मुझे एक चार्ज है Q0, इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है, A पॉइंट से B पॉइंट पे ले जाना है। अब यहाँ भी पोटेंशियल इतना ही, यहाँ भी पोटेंशियल इतना ही, WAB क्या हो जाएगा? VB - VA, VB की भी वही क्वांटिटी एंड VA की भी वही क्वांटिटी, देन WAB क्या हो जाएगा? 0। मतलब दैट मीन्स नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली होगी। ऐसे इन दोनों मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वो 90 का एंगल होगा। समझे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। सपोज कीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है एंड दिस वन इज ऑल्सो एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये एक दूसरे को कट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएगी, जहाँ ये इंटरसेक्ट करिए नहीं दूसरे को, इस वाले पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएगी, विच इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे डू सो then there will be two values of electric potential at the intersection points and which is impossible. नेक्स्ट जो मेरी प्रॉपर्टी है वो है जहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होती है वहाँ पे जो पोटेंशियल है, दैट मीन्स वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ भी दूर है वहाँ वीक है। समझे? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि E = क्या है? -dV/dr। dV क्या है? कांस्टेंट। dV तो कांस्टेंट होता है ना यहाँ पे, तो E इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1/dr। दैट मीन्स dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल E। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब चार्ज से हम दूर चलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कमज़ोर होती चल जाएगी और पास में स्ट्रॉन्ग होगी। दैट मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड फर्दर अपार्ट इफ द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर। अंडरस्टैंड? नाउ मैं आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होता है। सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी। अब मुझे यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। एक और ध्यान है मेरी बात की इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के होते हैं, नॉर्मली होते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो बनेगी ऐसे राउंड ऐसे। सेम ही नेगेटिव चार्ज में होगा, बस क्या होगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। सेम नेगेटिव चार्ज का फंडा है। समझे आप लोग? और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से देखिए ऐसे होगा,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होगी वो भी राउंड राउंड होगी इस तरीके। अब अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो इक्वल, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो कैसा होगा? तो क्या होगा, ऐसे चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर से भी ऐसे चली जाएगी। देन जो सरफेसेस होगी पहले तो ऐसे होगी, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ी सी दूर चलते चले जाएंगे तो जो सरफेस है वो इस तरीके से आड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैं डार्क ही बना देती हूँ इस तरीके से। ये सबसे मेन है, आप लोगों को समझना चाहिए। और नेक्स्ट है, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी? यूनिफॉर्म मतलब इस तरीके से, तो वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो ऐसे पैरेलल प्लेन्स बन जाएंगे। अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो वाई जेड प्लेन में पैरेलल प्लेन्स इस तरीके से, समझे आप लोग? ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आई होप आज के टॉपिक्स आप लोगों को बखूबी समझ में आए होंगे। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। Thank you so much for watching this video and keep supporting me.